Hello students, today I am here with a new chapter of book Flamingo. The name of the book is Poets and Pancakes, written by Ashoka Mitran. In 1931, he was a Tamil writer. Recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. Ashoka Mitran, who was a Tamil writer who was working under a boss. The name of the boss we will read further, and this is an excerpt from the book My Years with Boss. And in this book जो उसने इन्फ्लुएंस लिखा है इंडियन मूवीज़ का कि उसका लाइफ में क्या एक एस्पेक्ट था. द जेमिनी स्टूडियोज़ लोकेटेड इन चेन्नई was set up in 1940s. It was one of the most influential film producing organizations of India. Gemini Studios, one of the most prominent an organization of film studio. It has a influential role in studio of India, film industry in India in the early days of Indian filmmaking. Its founder was S.S. Bond. This was the boss where Ashoka Mitran was working under S.S. Vasan. He was the owner of the studio, Gemini Studio. The duty of Ashoka Mitran in Gemini Studios, he has to cut out newspaper clippings on a wide variety of subjects and store them in files. He was working in Gemini Studio and his work was to cut the newspaper clippings, जो कि न्यूज़पेपर की कटिंग ज़्यादा थी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड, मूवी से रिलेटेड, उसको फाइल स्टोर करके रखनी होती थी. ही हैज़ टू स्टोर द फाइल्स. मैनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड. एट दोज डेज सारा जो वर्किंग होता था, जितना भी काम होता था वो हैंड रिटन होता था. कंप्यूटर्स नहीं होते थे वहाँ पे. ऑल्दो ही परफॉर्म्ड एज एन insignificant function, he was the most well informed of all the members of the Gemini family. He was the Gemini family member and he has a prominent role. He was very insignificant function उसका वहाँ पे उसका रोल काफ़ी prominent था in Gemini Studio. The following is an excerpt from the book My Years with Boss. Let's start the story. Pancake was the brand name of the makeup material that Gemini Studios bought in truck loads. Now, what is pancake? The name of the chapter is Poets. Poets आपको मालूम है, and pancakes. What is pancake? Pancake, which is a brand name, just like a Lakme. ट्रक लोड होके आते थे, बहुत सारा, मतलब एक ट्रक में लोड होके आता था. ग्रीटा गार्बो must have used it. Miss Gohar must have used it. Vijayanti Mala must also have used it. But Rati Agnihotri may not have even heard of it. These are the actresses. Greta Garbo हॉलीवुड एक्ट्रेस है और गोहर, विजयंती माला, ये सारी इंडियन एक्ट्रेसेस हैं. और इन लोगों ने इसको यूज़ किया था. दे यूज़ टू डू दिस मेकअप एंड बट रति अग्निहोत्री वो इनके पीरियड के थोड़ा सा लेट आई. वो थोड़ी सी न्यू जनरेशन की है. जो नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने पैनकेक के बारे में कभी सुना भी नहीं होगा. द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियोज़ वॉज इन द अपस्टेयर्स of a building that was believed to have been Robert Clive's stables. The Gemini Studio was functional in Robert Clive's stables. Who was Robert Clive? Robert Clive जो ब्रिटिशर्स थे, एक कैप्टन था ब्रिटिशर्स के टाइम पे. तो उसके स्टेबल क्या होता है, जहाँ हॉर्सेस को रखा जाता है. तो उसके अपस्टेयर्स में, ऊपर वाली मंजिल में, वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो था. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence and he was the neighbor, he was the residential, उसका जो एरिया था वो इस सिटी में था. For his brief life and an even briefer stays in Madras, and Robert Clive used to live in this city. and उसकी जो एक brief उसका frequent visit था ये मद्रास में, इस जेमिनी स्टूडियो में. Robert Clive seems to have done a lot of moving besides
fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George in Madras. Then the makeup room had the look of a hair cutting salon with lights at all angles around half a dozen large mirrors. Now the Gemini studio had a makeup room where the dozen of lights हर एंगल से आती थी lights उस hair cutting saloon में. They were all indecent लाइट्स. इंडिसेंट मीन एकदम येलो, बहुत ही ज़्यादा चमकीली जो लाइट है, बहुत उसकी फ्लैश जो है बहुत ज़्यादा तेज़ है. सो यू कैन इमेजिन द फ्लेरी मिजरी ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप. दिस वॉज वेरी मिजरी. बर्निंग जो उसकी स्ट्रिंग्स होती थी, उस लाइट की जो हीट होती थी, दैट वॉज वेरी मिजरेबल. In makeup room, the makeup department was first headed by a Bengali. अब पहले इसको हेड ओवर किया था एक बंगाली के अंडर जो उस मेकअप डिपार्टमेंट में काम करता था. who became too big for a studio. After some time he became very popular and he left the studio. He was succeeded by a Maharashtrian. उसके बाद वहाँ पे एक महाराष्ट्रियन की एंट्रेंस होती है जेमिनी स्टूडियो में. हु वॉज असिस्टेड बाय अ दरबार कांडिगा. उसको दरबार कांडिगा से असिस्ट करते हैं. एंड आंध्रा, अ मद्रास, इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीज एंड द यूजुअल लोकल तामिल्स. Now author want to tell us they were Maharashtrian, Madras, Christians, Indians and Anglo-Burmese. They weren't against any caste because they didn't discriminate against any caste based system. They all the integration थी उनमें काफ़ी अच्छी. All this shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. National integration के जो programs जो कि broadcast होते थे at that time in AIR, ऑल इंडिया रेडियो पे, दूरदर्शन पे. तो इससे क्या होता था, द ऑथर सेज दैट द इवन बिफोर ऑल इंडिया रेडियो बिगन ब्रॉडकास्टिंग, उसमें जो पेट्रियाटिक शोज़ आते थे उससे नेशनल इंटीग्रेशन होती थी उनमें. द मेकअप रूम वॉज फुल ऑफ पीपल. उसमें जितने भी लोग थे दे वर फिल्ड विद पेट्रियाटिक zeal एंड fervor. That's why they didn't feel any discrimination against any caste based system. तो एक अच्छी एक बॉन्डिंग होती थी लोगों में. दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a hideous crimson. Here hideous crimson means become colored. The author wants to say us that जो people थे जो उस मेकअप डिपार्टमेंट में, मेकअप रूम में, इवन एक मेकअप मैन जो थे जो काफ़ी नेशनली इंटीग्रेटेड थे, दे टर्न इनटू हिडियस क्रिम्सन. अब वो चेंज हो जाते हैं, वो कलर्ड हो जाते हैं. क्यों होते हैं कलर्ड? वो लोग जो कि बहुत डिसेंट दिखते थे बिफोर अप्लाइंग द मेकअप, एक्चुअली वो कैसे दिखते हैं अब आफ्टर मेकअप देयर फेसेस ह्यूड मॉन्स्टर की तरह विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोडेड ऑफ पैनकेक. अब ऑथर को है जो मेकअप के बारे में उसके एक अच्छे उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है टुवर्ड्स पैनकेक जो मेकअप है, तो वो बोलता है कि उसको मेकअप करने के बाद लोग बिल्कुल ही ज़्यादा मॉन्स्टर्स दिखते हैं, क्योंकि वो ट्रक लोडेड में जो पैनकेक आता था वो उसको जो डिसेंट लुकिंग पीपल होते थे उनको भी बहुत मतलब अगली बनाता था. एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशन एंड लोशंस जो लिक्विड एंड मिक्सचर्स होते थे जो कि अप्लाई करते थे एक्टर एक्ट्रेसेस फेसेस पे, तो उससे वो और भी ज़्यादा अगली दिखते थे. ही वांट्स टू से those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors. उस टाइम पे जितनी भी शूटिंग्स होती थी दैट वर इन इंडोर्स और 5% ही आउटडोर्स होती थी. आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल्स एंड बॉयज़ टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी. Again, author wants to tell us that the girls and boys who used to make up and they look very ugly after, क्योंकि वो presentable दिखना चाहते थे movies में. That's why they used to make up
अब ऑथर का मानना है कि उससे वो और भी ज़्यादा अगली दिखते हैं। अ स्ट्रिक्ट hierarchy was maintained in the makeup department. Now, the second rule that the makeup room abides by is the hierarchical system. Hierarchical system means जो ranking system वहाँ पे होता था जेमिनी स्टूडियो में, क्योंकि एक हायरार्किकल सिस्टम में क्या होता है, सबसे ऊपर जो है वो थोड़ा चीफ होगा, फिर उससे थोड़ा नीचे असिस्टेंट होंगे, फिर उसके नीचे कुछ वर्कर्स होंगे। द फर्स्ट यहाँ पे ऑथर कौन किसको बताते हैं, द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस अगली, हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन, द जूनियर असिस्टेंट द मेन कॉमेडियन एंड सो फॉर्थ। नाउ ऑथर को बताना है कि जो हायरार्किकल सिस्टम वहाँ था और वो कैसे मेकअप करते थे। फॉर एग्जांपल जो चीफ मेकअप मैन होता था, जो आर्टिस्ट था, वो डेकअप टू द मेन लीड्स, वो किसका मेकअप करता था, जो मेन लीडिंग होते थे हीरो हीरोइंस, वाइल द जूनियर आर्टिस्ट वर्कड ऑन द सपोर्टिंग एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। उसके बाद कौन आते थे, द विलेन और कॉमेडियन, उनको कौन करते थे, जूनियर असिस्टेंट मेकअप करते थे एंड सो फॉर्थ। The players who played the crowd were the responsibility of the office boy. नाउ जितने भी क्राउड होती थी, मतलब इतने लोगों का एक कोऑर्डिनेशन वहाँ पे था, उनको कंट्रोल करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ऑफिस बॉय की। अब यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा है, ये लाइन नहीं है, ये एक एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने के लिए, बताने के लिए कि ऑफिस बॉय कौन है, क्या है। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। अब इस ऑफिस बॉय में थोड़ा सा एम्फेसिस भी किया है ऑथर ने। ये ऑफिस बॉय कौन है, लेट्स रीड फर्दर। ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग, you could see him mixing his paint in a giant vessel. Now author wanted to say that जो क्राउड शूटिंग होती थी उसको कंट्रोल ये ऑफिस बॉय करता था, एंड ही कुड सी, और वो उसको देखा जाता था, तो वो अपनी जाइंट वेसल, बड़ा सा एक बाउल में लेके आता था। मिक्सिंग पेंट मीन्स जो मेकअप का जो मटेरियल होता था, एंड slapping it on the crowd players. Now author want to tell us that there was a office boy and his job was to paint the crowd. He was having a giant vessel with this makeup paint, mixing paint. The idea was to, now author wanted to tell us that in those days technology wasn't so advanced, so you needed to cover each and every pore of the skin so that people would look like on the screen presentable. He wasn't exactly a boy. Now author wanted to say that he was not a boy. About office boy, he was not a boy. Why? He was in his early 40s, because having entered the studios year ago in the hope of become a star actor or a top screenwriter, director or lyrics writer, he was a bit of a poet. नाउ ऑथर बताता है हमें कि वो जो ऑफिस बॉय था वो एक बॉय नहीं था, बिकॉज ही वॉज इन अर्ली 40s, और वो बहुत टाइम पहले जेमिनी स्टूडियो में उसने ज्वाइन किया था इन द होप ऑफ बिकमिंग, वो एक्टर बनना चाहता था, स्क्रीन राइटर बनना चाहता था, टॉप स्क्रीन राइटर एक्चुअली, डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, और वो जो पोएट तो वो था ही था, कुछ एक पोइट्री उसको आती थी। In those days I worked in a cubicle. Cubicle here refers to cabinet. Cabinet में वो काम करता था। ऑथर बताते हैं हमें two whole side of which were French windows. French windows something like कुछ जो उसमें फ्रेम होती है, फ्रेम वर्क, तो उसमें कुछ फ्रेम्स के साथ वो कैबिनेट बना होता था। आई डिडेंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़, इवन ही डिडेंट नो अबाउट द फ्रेंच विंडोज़ एट दैट टाइम। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, he was always busy in tearing newspaper because उसका वो काम था, and in day and day out most people thought I was doing नेक्स्ट टू नथिंग, और सब सोचते थे कि वो कुछ भी नहीं करता, बल्कि उसका काम जो था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत टायर्डनेस फील होती थी उसको। इट इज़ लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू। अब जो एस.एस. वॉसन थे, जो बॉस थे,
दैट वॉज वेरी क्लोज टू हिम, क्योंकि वो काफ़ी उसको पसंद करते थे. सो एनी वन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इन टू माई cubicle and deliver an extended lecture. And then the author gives us a description of a job he used to do. जो काम ऑथर करता था. अब यहाँ पे जो ऑफिस बॉय है वो कौन है? वो खुद ही हिमसेल्फ, द ऑथर हिमसेल्फ इज़ अ ऑफिस बॉय. तो अब वो अपने बारे में बताते हैं, अब डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं उसके काम की. ही यूज्ड टू डू इन जेमिनी स्टूडियो. हिज जॉब वॉज द टू कलेक्ट न्यूज़पेपर कटिंग और वट एवर लिटल जो पेपर्स होते थे, एंड टू गेदर अबाउट जेमिनी स्टूडियो, एंड उसका जो प्रोडक्शन हाउस था उसमें इधर उधर लेके जाना. द ऑथर फेल्ट दैट एवरीबडी थॉट ही वॉज यूजलेस एंड वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट विच वॉजंट रिक्वायर्ड. और उसके साथ सिर्फ वो मतलब थोड़ी बहुत बैक बाइटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे उसके बस कैबिनेट में आके. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी enlightened on how great literacy talent was being allowed to go waste in a department fit only for barbers and perverts. Now जो ऑथर है वो बताता है कि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, बिकॉज मैं थोड़ा इनलाइटेंड होना चाहता था, और उसका जो टैलेंट है वो चाहता था वो उसको वेस्ट ना करे इन द डिपार्टमेंट, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट इज़ perverts are those who is not good in behavior with female. जो फीमेल्स होती थी उनके साथ उनका बिहेवियर मतलब थोड़ा सा ऑपोजिट होता था, थोड़े से सेक्सुअली ऑपोजिट होते थे. सून आई वॉज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम. उस टाइम पे वो बहुत हमेशा क्राउडेड रहता था लोगों से, क्योंकि इधर उधर लोग उसके कैबिनेट के पास से क्रॉस करते थे. नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स. मतलब कोई भी मुझे उनकी एपिक्स मतलब बेकार की बातें, यूजलेस टॉक्स से नहीं बचा पाता था, बिकॉज उसका जो कैबिनेट था उसकी जो पोजीशन थी वो ऐसे ही थी. इन ऑल द instances of frustration you will always find the anger directed towards a single person, openly or covertly. And this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to Kothamangalam Subbu. Here is another character of Subbu. Then in the story we come across Subbu. अब सुबू के बारे में यहाँ पे क्या बताया है? पहले ऑथर बताते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन, उसको जो फीलिंग होती थी, तो आप अपना जो एंगर है टुवर्ड्स सिंगल पर्सन, किसी एक के ऊपर निकालोगे अपनी फ्रस्ट्रेशन, या चाहे वो ओपनली हो चाहे वो सीक्रेटली आप करो. दैट ऑल द हिज वोज. नाउ उसका जो डिस्ट्रेस है वो इसकी वजह से कोथामंगलम के ऊपर निकलता था गुस्सा. सुबू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियोज़. नाउ उसका जो पोजीशन है जेमिनी स्टूडियो में सुब्बू की, वो सेकंड है इन पोजीशन. ही कुडंट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स दैन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैड. मतलब जो मेकअप बॉय की जो एक पोजीशन होती थी वो इतनी काफ़ी एनकरेजिंग होती थी. ऑन द कंट्रेरी ही मस्ट हैव हैड टू फेस मोर अनसर्टन एंड डिफ़िकल्ट टाइम. ही हैड फेस वेरी अनसर्टन, बहुत डिफ़िकल्टीज उसके लाइफ में आई फॉर व्हेन ही बिगन हिज करियर, बिकॉज स्टार्टिंग में उसने बहुत ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था अपना करियर. देयर वर नो फर्मली एस्टैब्लिश्ड फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज़ और स्टूडियोज़. उस टाइम पे जो प्रोड्यूसिंग फिल्म इंडस्ट्रीज़ की कोई कंपनीज़ नहीं होती थी, स्टूडियोज़ नहीं होते थे. इवन इन द मैटर ऑफ द एजुकेशन, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन, सुबू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर बॉय. मतलब जो ऑफिस बॉय था एज़ कम्पेयर टू हिमसेल्फ, तो वो कम पढ़ा लिखा था, उसको एक फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं मिली थी. बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण. अब वो क्योंकि एक उसकी क्वालिटी थी, बिकॉज ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली, अ वर्च्यू इंडीड. ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस एंड पीपल. नाउ सुबू जो था उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था. सुबू बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली ही वॉज वेरी टैलेंटेड एंड फेमस. और जो ऑफिस बॉय था who doesn't like Subbu at all. The office boy isn't actually a boy because he was in
late 40s. He was a adult man. He is a 40 years old. He was working in Gemini Studio. और उसका जो career है that didn't take off as compared to Subbu. Now Subbu, उसका जो करियर था वो काफ़ी अच्छा था बिकॉज उसने स्ट्रगल भी काफ़ी किया. ही इज़ एजुकेटेड, थोड़ा बहुत उसको जो बेसिक जो नॉलेज था, एजुकेशन थी वो अच्छी थी उसकी. ही वॉज ब्राह्मीण, ये उसका एक वर्च्यू था. एंड ही इज़ सो मच बेटर देन द ऑफिस बॉय. Subbu was one of the guys who were hired to create. मतलब उसमें जो क्रिएटिविटी थी, जो हम पढ़ेंगे आगे उसमें क्या क्रिएटिविटी थी ऐसी. He had the ability to look cheerful at all the times, even after having had a hand in a flop film. Even उसकी जो काफ़ी कुछ फिल्म थी वो फ्लॉप थी. Even after he was very cheerful, he looked very उसमें जो ability थी to look cheerful all the time in every situation. He always had work for somebody. सबके लिए वो काम करता था. He could never do things on his own, but his sense of loyalty made him identify himself with his principle completely. उसका जो एक अच्छा प्रोमिनेंट जो रोल था जेमिनी स्टूडियो में, जिससे वो उसको एक आइडेंटिफिकेशन मिली थी, उसकी जो लॉयल्टी थी उसके लिए भी, और जो वो बहुत हेल्पफुल था. एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज. और उसको इसमें प्रिंसिपल मतलब एक जो उसको रोल था उसमें अच्छा उसका एडवांटेज मिला इन्हीं वजह से. He was tailor-made for films. Tailor-made film means perfectly suitable. He was perfectly suitable for films. Here was a man who could be inspired when commanded. वो ऐसा आदमी था, मतलब अगर उससे कमांड करे तो वो उसको इंस्पिरेशंस मिलती थी, मोटिवेशन मिलती थी. अदरवाइज़ वो इतना भी ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग नहीं था. उसको कमांड करे तो वो सर्व करता था, चाहे कोई भी हो इन जेमिनी स्टूडियो. अगेन उसके बारे में एक स्टोरी बताई है. द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट takes pity on the cubs and tends them lovingly. I don't know how to do the scene, the producer would say, and Subbu would come out with 4 ways of the rat pouring affection on its victims, offering good, but I am not sure it is effective enough, the producer would say, and in a minute Subbu would come out with 14 more alternatives. Here in this aspect, Subbu was very awesome. If he was told to create, he would create. Now the author also narrates a hilarious story in relaxation to this once upon a time. एक स्टोरी है, डायरेक्टर बताता है सुब्बू को that there were a rat and a tigress, and the rat kills the tigress but becomes merciful and decided to let the cubs live. Then Subbu was asked as to how he would show the affection of the rat. So first Subbu gave 4 ways, but bosses didn't agree. Then Subbu come up with 14 more ways. This is the way of Subbu work. उसका जो तरीका था, उसके पास बहुत सारे वे आउट्स होते थे, इसीलिए वो बहुत अप्रिशिएबल था. बहुत उसका एक उसकी जो आइडेंटिटी थी वो काफ़ी prominent थी in Gemini Studio. Now filmmaking must have been and was so easy with a man like Subbu around, and if ever there was a man who gave direction and definition to Gemini Studio during its golden years. जब सुब्बू वहाँ पे जेमिनी स्टूडियो में काम करता था तो ये काफ़ी एक गोल्डन मोमेंट था जो जेमिनी स्टूडियो के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ थे, उसके बाद वो हर एक डायरेक्शन देता था लोगों को, और ये सिर्फ सुब्बू ही था जो ये सब करता था पॉसिबल. सुब्बू हैड अ सेपरेट इन आइडेंटिटी एज अ पोएट, एंड दो ही वॉज सर्टेनली कैपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स. नाउ जो सुब्बू था उसकी जो आइडेंटिफिकेशन थी एज अ पोएट वो भी काफ़ी कैपेबल था इसमें, एंड मोर जो कॉम्प्लेक्स और उसकी जो हायर फॉर्म्स होती थी
तो उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग जो था वो भी काफ़ी इंस्पायरेबल था. हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवरशैडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटरेरी अचीवमेंट्स. ड्वार्फ्ड मीन्स मतलब उसकी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग थी उससे उसको एक अचीवमेंट मिली थी, लिटरेरी अचीवमेंट्स. और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, और उसके जो क्रिटिक्स थे वो भी ये सोचते थे कि वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है. ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फोक रेफरेन एंड डिक्शन एंड ऑल्सो रोट अ स्प्रॉलिंग. मतलब जो उसकी राइटिंग स्टाइल था वो काफ़ी डिटेल होती थी. नॉवल थिलाना मोहनम्बल with dozen, a very deftly etched means effortlessly described करता था वो जितनी भी उसकी स्टोरीज होती थी, और जो कैरेक्टर होते थे उसमें उनको बहुत अच्छे से एलोबरेट करता था, डिस्क्राइब करता था. ही क्वाइट सक्सेसफुली recreated the mood and manner of the Devidasis of the early 20th century. 20th century means 1980s के अराउंड. एक साउथ इंडियन गर्ल थी, हीरोइन थी, उसके ऊपर उसने एक मूवी बनाई. एंड ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर. वो एक एक्टर भी था. सुबू ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स बट वट एवर सब्सिडरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म्स ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज मेन प्लेयर. उसे ऐसा नहीं था कि उसको मेन रोल ही मिलता था, बट जो सब्सिडरी रोल उसको मिलते थे, मतलब उसको जो एक्सेप्शनल जो रोल होते थे उसमें भी उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता था एज़ कम्पेयर टू जो मेन जो प्लेयर्स थे मूवीज़ या किसी स्टोरी में. ही हैड अ जेन्यून लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एंड हिज हाउस वॉज अ permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances.